Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. Well, behind every powerful educational study lies a research design, a blueprint that guides the entire research process. In today's video, we are going to explore three major types of research design, that is descriptive, experimental and historical design. From analyzing student performance in your classroom to testing new teaching strategies. So, research design is the strategic architecture of a study, that is the plan of a study. Before building a house, you need a blueprint. Similarly, before doing research, you need a plan that tells you what to study, how to study, when to study and why to study. So, research design is like a roadmap. It gives you or it guides your journey from questioning to answer by choosing right strategy. राइट स्ट्रैटेजी चूज करेंगे, मेथड्स, डायरेक्शंस. So the challenges: navigating complex unstructured research problem and raw data. How you handle problems ड्यूरिंग रिसर्च. ये चैलेंजेस हैं. द स्ट्रैटेजी एंड ब्लूप्रिंट, क्या प्लान होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, ओवरऑल प्लान. ये रिलेटेड है ओवरऑल प्लान से. द ओवरऑल प्लान चूजन टू इंटीग्रेट different components of a study in a coherent and logical way, the specific framework for the collection, measurement and analysis of data. This deals how will you solve your research problem. अपने research problem को कैसे solve करेंगे. The strategy. The goal is basically to achieve the objective. System solution. To ensure the research problem is effectively and systematically addressed. This deal what you want to achieve. क्या आपको अचीव करना है, गोल, पर्पस. The timeline of inquiry determines the methodology. This is when and for how long you will study. That is historical research, जो past से related है. Descriptive research, present. Experimental research, future. It focuses on what was, what is, what will be. Historical research, इसका example कि studying history of education system. पास्ट के बारे में जो है वो स्टडी करना. एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग नाउ. क्या हो रहा है अभी, उसको डिस्क्राइब करता है. एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर. ऑब्जर्विंग classroom behavior. Then experimental research, ये जो है हमारा, ये टेस्ट करता है cause and effect को. Cause and effect. Group A studies with music, Group B without music. So they compare result. Does music improves focus? So this is the experimental research. Cause and effect को जो है ये टेस्ट करता है.
कंपेयरिंग ओवरआर्किंग रिसर्च गोल्स एंड लिमिटेशन. सो रिसर्च डिजाइन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव, ये हमारा किससे डील करता है? डिस्क्राइब करता है व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है. टू क्रिएट, इसका गोल क्या है? टू क्रिएट ए स्नैपशॉट ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर, like for example observing classroom behavior. Its advantage is provide a relatively complete picture of what is occurring at a given time. और इसकी disadvantage क्या है? Does not assess relationship among variables as control cannot be exercised. So ये relationship जो है वो find out नहीं करता. And correlation is to assess the relationship. ये relationship दोनों variable के बीच में ये assess करता है. इसकी एडवांटेज, इट्स अलाउ टेस्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग वेरिएबल्स. ठीक है, सो इसकी ये डिसएडवांटेज है कोरिलेशनल की. एंड कोरिलेशनल इज बेसिकली आपका एग्जाम्पल जो है ये कनेक्शन से रिलेटेड है. एग्जाम्पल कि अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. सो अधिक पढ़ाई एंड अच्छे मार्क्स. ज़्यादा मोबाइल यूज़ करोगे तो कम कंसंट्रेशन होगा. सो दिस इज द कोरिलेशनल. और डिस्क्रिप्टिव जो होता है ये हमारा सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब अ सिचुएशन, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप शो नहीं करता. नो रिलेशनशिप टेस्टेड. कितने स्टूडेंट रोज एक्सरसाइज करते हैं, ये सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन देगा, कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू असेस द causal impact of one or more experimental manipulation on a dependent variable. It allows establishing causal relationship among variables. Difficulty in experimentally manipulating many important variables may be expensive and time consuming. So इसका डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है. और इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग बहुत मतलब मुश्किल होती है मैनिपुलेट करने में, वरना रिजल्ट जो है वो बेकार आएगा. हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वाज. सो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है व्हाट वाज को, ये पास्ट इवेंट जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, देन डिस्कवर करना अननोन हिस्टोरिकल इवेंट्स को, देन स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट इवेंट्स. सो दिस डील्स विद पास्ट इवेंट्स. Then descriptive deals with present events. The systematic collection and objective evaluation of data related to past occurrence in order to test hypotheses concerning cause, effect or trend. फोर डोमेन्स हैं हिस्टोरिकल इंक्वायरी के. हिस्टोरिकल इंक्वायरी करने के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग, पहले जो है बिब्लियोग्राफिक रिसर्च होती है, लीगल रिसर्च होती है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ एंड हिस्ट्री ऑफ institution or organization. Bibliographic research basically determines facts about the life, character and achievement of important educator. This is basically by doing study of books, documents, collect and analyze existing written materials. जैसे आपके जो हैं बुक्स हो गया, जर्नल हो गया, रिपोर्ट आर्टिकल्स, उनसे पढ़ के. देन लीगल रिसर्च इज स्टडिंग द लीगल बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रिलेशन एंड स्कूल फाइनेंस. हिस्ट्री ऑफ आइडियाज ट्रेसिंग मेजर फिलोसफिकल और साइंटिफिक थॉट्स फ्रॉम देयर ओरिजिन थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इज प्रोमिनेंट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी की जो है हिस्ट्री को जो है और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना. इसमें फेथ और बिलीफ से रिलेटेड जो है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज. सोर्सिंग द पास्ट, ओरिजिनल एविडेंसेस वर्सेस नरेटेड रिपोर्ट. सो इसके सोर्सेज क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च के? पहला है प्राइमरी सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स ये ओरिजिनल होता है, ठीक है, एज यू कैन सी. सेकेंडरी सोर्स इज इंटरप्रेटेड, जो है प्राइमरी सोर्स से निकला हुआ जो हो वो सेकेंडरी सोर्स है जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल्स आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा और द फर्स्ट विटनेस ऑफ टू द फैक्ट.
तो हम इसको फर्स्ट हैंड भी बोलते हैं. रिपोर्ट्स ऑफ पर्सन हु नरेटेड द टेस्टिमनी ऑफ एन एक्चुअल विटनेस, दे सर्व अ यूजफुल पर्पस बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? टूल्स, वेपन्स, क्लोथिंग, ओरिजिनल पेंटिंग, कॉइन्स, ऑटोबायोग्राफीज, लेटर. So these are the primary sources to study historical researches. Secondary sources, example bibliographies, historical books, encyclopedias, newspaper report of a time. So these are the example of secondary sources. The historian filters evaluating data from truth and value. So raw data जो है, हमने कोई भी रॉ डेटा लिया, ठीक है. रॉ डेटा कौन सा हुआ? जो अनप्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड, ठीक है. कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है. कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब इसको जो है दो क्रिटिसिज्म से जो है गुजरना पड़ेगा. एक है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, दूसरा है इंटरनल क्रिटिसिज्म. सो ये हिस्टोरिकल रिसर्च में टू टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म होता है. पहला एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, दूसरा इंटरनल क्रिटिसिज्म. सो ये फोकस करता है एक्सटर्नल ऑथेंटिसिटी पे, और जो है इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है ये फोकस करता है एक्यूरेसी पे. The process by which historian determine whether a source is authentic by checking the genuineness of the physical source itself. Is this document real? तो ये real और fake को जो है आइडेंटिफाई करता है, ठीक है. सोर्स जो है वो रियल है कि फेक है, इसको जो है ऑथेंटिकेट करेंगे. देन इंटरनल क्रिटिसिज्म इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्यूरेसी और worth of the document's content, the attempt by the researcher to restore the true meaning of the text. So is this information inside it's correct? इसको देखता है. ये बेसिकली एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी को चेक करता है. रिलायबिलिटी टू वैलिडेट द हिस्टोरिकल डेटा. जो हमने डेटा कलेक्ट करा है प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से, जो डेटा है हमें उसको दो क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ता है. एक एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल क्रिटिसिज्म. उसके बाद जो है वो वैलिडेट करता है हिस्टोरिकल डेटा को. सो इट इज रेडी टू बी यूज्ड इन रिसर्च. यूज्ड इन रिसर्च. स्टेप्स हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करने के, पहला जो है डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को. सो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इफ एनी, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा क्रिटिसिज्म है, ठीक है. देन चेक करेंगे इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ डेटा, उसको इंटरप्रेट करना, देन सिंथेसाइज करना, देन राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट. दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, captures the current state of phenomena. It is related to present, what is happening. Core aim क्या है इसका? To describe what exists with respect to variables or condition in a situation. It determines the nature of situation as it exists at the time of study. So it involves gathering data from large group. Large group से data को gather करना. Then deals mainly with what exists at present. अभी present में क्या चल रहा है. Then concerned chiefly with the general population rather than individual. इंडिविजुअल पे फोकस ना करते हुए वो पूरा जनरल पॉपुलेशन पे जो है फोकस करता है. इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग इवेंट्स. द टैक्सोनॉमी ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड. So descriptive research is related to correlational studies, casual comparative survey studies, includes all this census, sample, cross-sectional, longitudinal, comparative, evaluative, documentary survey, or you can say analysis of information content. Correlation is basically shows the relationship between interrelationship between variables and measuring the extent of association without manipulation. Casual comparative is the ex post facto, is investigating how and why a phenomena occurred after the fact. फैक्ट हो जाने के बाद जो फिनोमेना जो है अकर हो रहा है इसको कंपेयर करता है. इट्स बेसिकली कंपेयर आफ्टर इवेंट. कंपेयर आफ्टर इवेंट.
इवेंट हो जाने के बाद, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो. इट compare group to find possible causes after some time has already happened. So example क्या है कि for example कि compare कर रहे हैं student who failed and student who passed. So you try to find did study habits differ. You cannot control variables, only compare. तो हम इसमें जो है सिर्फ जो है compare कर सकते हैं और वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते. देन सर्वे स्टडीज इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल यूजिंग क्वेश्चंस. सो obtaining descriptive evaluative information from population. एग्जाम्पल जो है वो हम फॉर एग्जाम्पल कि डेटा जो है वो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन से. इसमें रिलेटेड होता है हमारा सेंसस, सैम्पल, क्रॉस सेक्शनल सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल, कंपैरेटिव, इवैल्यूएटिव, डॉक्यूमेंट्री. सो जो हमारा सेंसस सर्वे होता है ये हमारा जो है डेटा फ्रॉम एवरीवन, सबसे डेटा हम लेते हैं, डेटा फ्रॉम एवरीवन. फॉर एग्जाम्पल टीचर आस्क ऑल स्टूडेंट इन क्लास अबाउट फेवरेट सब्जेक्ट. तो हमने ये क्या किया, सेंसस सर्वे लिया. ये हमारा रिलेटेड होता है होल ग्रुप से, होल ग्रुप. सैंपल सर्वे, डेटा फ्रॉम सम पीपल, सैंपल से लिया है सिर्फ, डेटा फ्रॉम सम पीपल. देन क्रॉस सेक्शनल सर्वे is basically data collected at one point of time, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड बिफोर एग्जाम. सो एग्जाम से पहले कितने स्टूडेंट जो है स्ट्रेस हैं, इसको हम एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो सर्वे स्टडी हो रही है. लॉन्गिट्यूडनल सर्वे इज ओवर टाइम, डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. ट्रैक सम स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर 1 year, ठीक है. सो ट्रैकिंग सम स्टूडेंट परफॉर्मेंस टिल 1 year. तो 1 साल तक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. कंपैरेटिव सर्वे क्या होता है, ये होता है कि कंपेयर 2 और मोर ग्रुप्स, ठीक है, जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं. देन इवैल्यूएटिव सर्वे, दिस इज बेसिकली चेक इफेक्टिवनेस और सक्सेस. डिड ऑनलाइन क्लासेस इंप्रूव लर्निंग. डॉक्यूमेंट्री सर्वे, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशनल कंटेंट, यूज existing records, documents. एग्जाम्पल स्कूल रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रजिस्टर. सो ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट सर्वे, उसको यूज करना. देन एक्सपोज्ड फैक्टर ट्रेसिंग causes backward from current effect. This is basically the causal comparative investigation in which a research studies a real life situation in which subject have already experienced what the researcher wishes to investigate. mechanism क्या है इसमें, इसको एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च भी बोलते हैं. इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी प्रेजेंट फिनोमेना एंड ट्रेस बैकवर्ड टू डिस्कवर हाउ एंड व्हाई इट इज अकर्ड. सो इसमें जो है वेरिएबल का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता. सो ये आपको याद रखना है कि एक्सपोज्ड फैक्टर में वेरिएबल का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता. इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट कंट्रोल और मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज द इवेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल. क्रॉस सेक्शनल जो हमारा 1 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए,
और ये जो हमारा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Cross sectional study is a snapshot. You can see that at one point of time, takes place at a single point in time. Random sample of successive ages segments are measured at once. Less participant drop out. So एक ही टाइम पे लिया गया है तो पार्टिसिपेंट को इधर उधर होना भी जो है वो इम्पॉसिबल है। पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, दिस इज द वीडियो, मेजर वेरिएबल्स रिपीटेडली ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, ठीक है। Follows the same subject group or institution, more expensive, require more resources and is subject to selective attrition, drop out। इसमें drop out भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब टाइम टू टाइम जो है इसमें जो आपके पार्टिसिपेंट हैं वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतने हैं, फिर नेक्स्ट में कितने मिलेंगे, तो इसमें जो है ये थोड़ा सा वो होता है डिफ़िकल्ट। ट्रैकिंग ओवर टाइम, ट्रेंड, पैनल एंड कोहर्ट स्टडीज। सो ये ट्रेंड, पैनल एंड कोहर्ट स्टडीज क्या होती है? ट्रेंड जो है हमारा रिलेटेड है सैम्पलिंग अ जनरल पॉपुलेशन टू एनालाइज सोशल इकोनॉमिक चेंजेस एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर स्टेटस। डिफरेंट पीपल सेम पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें चेंजिंग सैंपल, सैंपल को चेंज करते हैं। Sample. Panel studies, the exact same group of sample respondent is studied over a continuous period of time, that is same individual, here same people. Cohort studies, sampling a group based on a specific shared event such as birth year, introduction of a new system over different phases of development, same subgroup, same categories, ठीक है। कैटेगरी सेम है, इसमें सेम पीपल हैं, इसमें चेंजिंग सैंपल, ठीक है। बेसिकली ट्रेंड स्टडीज में ये जो जनरल पॉपुलेशन है ये हमारा डिफरेंट स्टूडेंट ईच ईयर लेते हैं, ठीक है। ईच ईयर हम डिफरेंट स्टूडेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल T1 में आर स्टूडेंट अडिक्टेड टू मोबाइल फोन, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मोबाइल फ़ोन से स्टूडेंट अडिक्टेड है। तो हमने T1 में जो है 50 बच्चों से पूछा जनवरी में, ठीक है। देन अनदर 50 बच्चे लिए हमने जून में, देन नेक्स्ट 50 जो है हमने लिए दिसंबर में। तो हमने इसमें सैंपल जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड स्टडीज। एंड इन पैनल स्टडीज सेम स्टूडेंट ट्रैक ईयरली, सेम स्टूडेंट जो है वो ट्रैक हो रहे हैं पर ईयरली हो रहे हैं, ठीक है। यू ट्रैक योर 5 क्लोज फ्रेंड, ठीक है। T1 में हमने चेक देयर स्टडी आर, जनवरी में हमने चेक किया उनका स्टडी आर, ठीक है। फिर चेक अगेन इन जून, जून में हमने उनका चेक किया स्टडी आर, ठीक है। देन अगेन इन दिसंबर। 5 क्लोज फ्रेंड लिए हमने, उनको जनवरी में, जून में, दिसंबर में जो है बार बार उनके स्टडी आवर्स को हमने चेक किया। सो यहाँ क्या है हमारा सेम पीपल है, और यहाँ क्या था हमारा जो है सैंपल हमने चेंज कर दिया। देन कोहर्ट स्टडीज, बेसिकली स्टूडेंट ऑफ 2025 बैच हमने जो है उनको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। 2025 के बैच के एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु ज्वाइन क्लास 10th इन 2025 में जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको हमने सैंपल लिया, ठीक है। तो हमने T1 में क्या किया, ऑब्जर्व देम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सेशन के बिगिनिंग में हमने उनको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। T2 में हमने क्या किया, उनको मिड ईयर में उनको ऑब्जर्व किया। देन T3 में हमने उनको एंड में, एंड ऑफ द ईयर में जो है ऑब्जर्व किया। सो हेयर सेम कैटेगरीज के बच्चों को लिया। सो दिस इज द कोहर्ट स्टडीज। द सिस्टमैटिक स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, selection and statement of research problem and significance, identification of the objective and translation into criteria,
फिर हम टूल्स को और टेक्निक्स को जो है डेटा कलेक्शन के लिए डिटरमाइन करेंगे, फिर हम पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, देन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, देन राइटिंग अ रिपोर्ट. These are the steps of descriptive research. So in next video we will study about that experimental research in details. Thank you so much. Keep growing, keep learning and stay connected with me. Thank you.